Hello everyone, my name is Nakshi Sharma and today I am going to tell you chapter 1 of history of class 6 NCERT, and the chapter name is what, where, how and when. Okay, so chapter is started with Rashida's question. She is reading the newspaper and her eyes fell on small headline, and headline is 100 years ago. She wondered that how could anyone know what happened so many years ago. Okay, the first heading of this chapter is find out what happened. So could you listen to the radio, watch television, read a newspaper? No? Somebody asked, who remembers? What about long ago? Let's see how it can be done. Next headline is, what can we know about the past? There are many things we can find out, like what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses they lived, the life of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians and scientists. And also this we can find out what games the children played at that time, what stories they heard, which type of plays they saw, which songs they sang at that time. Now the question arises, where did people live? So find the river Narmada. River Narmada, map page number 2. Okay, let's go to page number 2. Okay, here it is. Narmada river. Now you can see the where is Narmada river. Okay, now come back to the page number 1. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. वो लोग यहाँ पे इस रिवर के किनारे पे बहुत सालों तक रहे हैं. We call them skilled gatherers. Why we call them skilled gatherers? Because they know where, how and when they gather their food. They know about the plants in surrounding forest. They collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. Okay, let's see in the map. Kirthar hills and Suleiman. Now you can see this. This area is related to where first began man and women began to grow crops such as wheat and barley. And what time? 8,000 years ago. We are talking about 800 years ago. Okay, at this time, people also began rearing animals, like which animals? Sheep, goat, cattle, and they stopped moving here and there. Now they lived in villages. Locate the Garo hills to the northeast and Vindhyas in the central India. Now look at the map. Okay, Garo hills and near to Narmada river, Vindhyas. There were some of other areas where ये और एरियाज दिखाए गए हैं और इनसे भी अलग और एरियाज है जहां पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है एट दैट टाइम. द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन. पहली बार राइस कहाँ ग्रो हुआ? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. विंध्यास के नॉर्थ में. ओके, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जहां पर छोटी स्मॉलर रिवर्स फ्लो करती हैं. कहाँ? लार्जर रिवर के पास में. लार्जर रिवर से वो मीट करते हैं और वो फ्लो करते हैं लार्जर रिवर से स्मॉलर रिवर. ठीक है, जहां स्मॉलर रिवर लार्जर रिवर में मिलती है. मीन्स about 4,700 years ago, some earliest cities flourished on the bank of these rivers. इन rivers के आसपास के एरिया में बैंक किनारे यानी कि किनारों पे कुछ cities flourish हुई थी
बट गंगा के किनारे पे कब सिटीज बनी है? वो बनी है 500 years ago. 2500 years ago. Okay. Locate the Ganga and its tributary called the Son. तो जो गंगा और उसका ट्रिब्यूटरी का एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? सोन. आपको मैप में भी दिख जाएगा सोन रिवर. इट मीन्स दिस एरिया. ओके. गंगा रिवर के आसपास साउथ वाले एरिया को मगध नाम से जाना जाता था, जो आज कहाँ है? नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. एंड इट्स रूलर वेरी पावरफुल and set up a large kingdom. Okay, kingdoms were set up in other parts of the country as well. उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर अपने किंगडम को एस्टेब्लिश किया था. Throughout people traveled from one part the subcontinent to another. वो अब एक एरिया से दूसरे एरिया पे ट्रेवल करते थे. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, seas, made journeys dangerous at that time but never impossible. It means hills, high mountains उनके जर्नी को डेंजरस तो बनाते थे बट कभी उनको रुकने के लिए वो मजबूर नहीं करते थे. अब क्वेश्चन ये होता है कि वो इन डेंजरस को क्यों फेस कर रहे हैं? तो व्हाट आर द रीजंस? सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड. वो लिवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे एंड अपने आप को सेव करने के लिए नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स, उनसे अपने आप को बचाने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे. समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज. मैन आर्मी के लिए मार्च कर रहा है क्योंकि उसे कॉन्क्वेर करना है. इट मीन्स फाइट करनी है लैंड के लिए. बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विथ कारवा. कारवा क्या होता है? कुछ लोगों का समूह जहां पे वो कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स. वैल्यूएबल मीन्स जो बहुत ज्यादा प्रीशियस सामान उनके पास होता था वो उनके साथ में ट्रेवल करते थे. एंड रिलीजियस टीचर्स वर्कड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे. फाइनली सम पीपल. अब कुछ पीपल क्यों ट्रैवल करते थे? बिकॉज उनके अंदर एक स्पिरिट है एडवेंचर की. They want to discover a new and exciting places. So they moved, they traveled. All those lead to the sharing ideas between people. Why do people travel nowadays? ये आपको जो reasons दिए गए हैं वो reasons दिए हैं कि पहले earlier time में people move क्यों करते थे, travel क्यों करते थे. But यहाँ पे question है why do people travel nowadays? अब पीपल ट्रैवल क्यों करते हैं, उनके लिए क्या रीजंस है? तो लुक एट मैप वंस मोर. तो आप जब मैप में देखेंगे तो आपको काफी हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स ये सब शो किया गया है कि यहाँ पे क्या होता था. ये फ्रंटियर्स है जिनको क्रॉस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था बट वो उन माउंटेन्स को, उन सीज को क्रॉस करते थे बिकॉज दे अचीव देयर स्केल. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. ऐसा नहीं है कि वो उनको पार करके बस यहाँ के लोग वहां गए हैं. दूसरे एरिया के लोग भी यहाँ पे आते थे और यहाँ पे रहते थे. These movements of people enriched our cultural traditions. इन मूवमेंट से क्या हुआ? एक जगह का कस्टम, एक जगह का कल्चर जो उनका ट्रेडिशन है वो दूसरी जगह अपने आप उनके साथ में आ गया और यहाँ का जो कल्चर और जो उनका कस्टम्स थे वो उधर चले गए. तो ये क्या हुआ? एक दूसरे के साथ उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए, अपने वेज बताए कि वेज किस चीज के बताए? कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड. ओके, नाउ द हेडलाइन इज नेम्स ऑफ द लैंड. लैंड के नेम कैसे हुए? लाइक इंडिया का ये हमारी कंट्री का नाम इंडिया कैसे हुआ, भारत कैसे पड़ा? तो हम अपनी कंट्री को, वी नो आवर कंट्री of two words like India and Bharat. The word India comes from the word Indus. संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, इंदस को ही सिंधु बोलते हैं. ठीक है, संस्कृत में वर्ड.
फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। आपको के ग्रीस और ईरान के लोग पीपल यहाँ कैसे आए, कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी है, वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ नहीं है, वो सब देखने के लिए आप अपने एटलस में देख सकते हैं। द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago एंड फैमिलियर, मतलब वो बिल्कुल ऐसे रहने लगे जैसे कि यहाँ पे ही उनकी फैमिली है। और वो इंडस, जो इंडस में रहते थे, यानी कि जो सिंधु सभ्यता में रहते थे, उनको वो क्या बोलते थे, हिंदूस और इंडोस। ये दो वर्ड वो उनके लिए यूज करते थे, इसलिए यहाँ का नाम इंडिया पड़ा। उनकी वजह से वो लोग इसको इंडिया उन्होंने नाम दिया। The name Bharat was used for a group of people who lived in northwest and who were mentioned in the Rig Veda. भारत वर्ड आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन, सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में। उसको माना जाता है कि वो 3005 years पहली है, ठीक है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और इसके बाद ये वर्ड अपनी कंट्री यानी कि इंडिया के लिए यूज होने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो बहुत सारे रास्ते हैं, मेनी वेज वी कैन फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट वन वे इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। जो बुक्स लिखी गई हैं पहले, उनको रीड करके हम पास्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। These are called manuscripts, उनको हम क्या बोलते हैं, manuscripts। manuscripts क्यों बोलते हैं, because they were written by hand। The Latin word manu meaning hand, manu का मतलब क्या है, hand, and they were usually these type of manuscripts written on palm leaf or specially prepared bark of a tree known as the birch। जो ये पेड़ हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हिमालयाज में मिलता है। ओवर द इयर्स, जब बहुत सारा टाइम बीत गया, तो काफी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर इटन बाय इंसेक्ट्स, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। ओके, दिस पिक्चर इज शोन टू रिलेट with a manuscript. It means this is an example of manuscript. ठीक है, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो इंसेक्ट्स ने इटन किए, कुछ डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, बट नाउअडेज वी हैव सम मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो प्रिजर्व्ड है, कहाँ, टेम्पल्स में और मॉन्स्ट्रीज में। These books dealt with all kinds of subject। अब इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, ठीक है, किंग्स की लाइफ क्या थी, मेडिसिन, साइंस, ऑल द थिंग्स आर गिवन इन दीज बुक्स। Besides this, there were epics, poems and plays also. Many of these were written, it means mostly books are written in Sanskrit, but some are written in प्राकृत। प्राकृत मीन्स जो ऑर्डिनरी पीपल उस टाइम पे होते थे, वो जो भाषा यूज करते थे, जो लैंग्वेज वो यूज करते थे, उसको प्राकृत बोलते हैं। एंड थर्ड लैंग्वेज इज तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, जो हाथ से लिखे हुए होते हैं, जो कहाँ पे लिखते थे, मेनली वो पाम लीफ पे लिखते थे, और कहाँ पे, वो एक bark of a tree commonly known as birch which is grows on Himalayas. And second is inscriptions. What are inscriptions? Inscriptions, these are writings on relatively hard surfaces. Hard surfaces means like stone or metal. जो metal और stone पे लिखी हुई जो writings हमें मिलती है, हम उनको क्या बोलते हैं, inscriptions. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kind of inscriptions as well, where men and women including kings and queens recorded what did they did. ठीक है, कि बहुत ज्यादा चीजें जो है किस पे हमें क्या मिलते हैं, कि राजा के, किंग्स के ऑर्डर्स उन पे लिखे हुए हैं, ताकि जो वहां की जनता है, जो उनकी प्रजा है, वो उनको देखे, रीड करे और उनका पालन करे। और
ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ राजा के आदेश ही लिखे हैं, बल्कि कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जो इंक्लूड करते हैं किंग्स और क्वींस को, लाइक उनकी विक्ट्रीज, उन्होंने जो विक्ट्रीज विजय हासिल की है बैटल में, उनके रिकॉर्ड रखे हुए हैं। Now the question arises, can you think the advantages of writing on a hard surface? Yes, there are many advantages. अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे लिखते हो तो इंसेक्ट उसको खराब नहीं करेगा, उसकी सर्वाइवल लाइफ बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है एक हार्ड सरफेस पे लिखने के। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज होंगी क्योंकि उसका सरफेस हार्ड है, तो आपको लिखने में उसमें डिफिकल्ट तो होगा। देयर वर मेनी अदर things that were used and made in the past. So many things they used and made in the past. तो जो इन चीजों की, जो इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, और वो स्टडी करते हैं जो बिल्डिंग्स अभी स्टोन की, ब्रिक की, या कोई हमें पेंटिंग मिलती है, स्कल्पचर मिलता है, वो उनकी स्टडी करके बताते हैं कि वो कितना पुराना है, उसकी एज कितनी है, किस मेटल का बना हुआ है, उस टाइम पे कौन कौन से मेटल यूज होते थे, वो ये सब की जानकारी हमें देते हैं। कौन देते हैं हमें ये सब जानकारी? आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, दे एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मींस कि अर्थ के सरफेस पे डिग करके वो देखते थे कि इसके सरफेस में और क्या क्या चीजें हैं, और वो फाइंड आउट करते थे। उनको कुछ चीजें मिली है, एविडेंस है उनके पास में, तो वो टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैंट्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ऐसी चीजें उनको मिली है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर बोन्स। कुछ चीजें स्टोन की बनी हुई है, तो कुछ बोन की है, कुछ बेक्ड क्ले है और मेटल है। जैसे उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो किया, तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए उन्हें सीड को कहीं सेव करके रखना था, तो उन्होंने बेक्ड क्ले यानी के पोर्ट्स को बनाया, पोर्ट्स का यूज किया स्टोर करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। सीरियसली, अगर कोई हार्ड सरफेस की चीज है ना, हार्ड किसी चीज से बनी हुई है, तो उसका सर्वाइवल ज्यादा होगा। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन जिसकी डेट बताई जाती है 2250 ईयर्स का पहले का वो है, वो हमें कंधार, ठीक है, कंधार उस जगह को पहले बोलते थे, बट आज वो जगह कहाँ पे है? वो जगह है अफगानिस्तान में, और वहां का रूलर कौन रह चुका है? अशोका, जिनके बारे में हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में। ओके, दिस पिक्चर, ये पिक्चर आपको जो दिखाई गई है, लाइक दिस पोर्ट, ये एक ओल्ड सिटी से मिला हुआ पोर्ट है जो लेफ्ट में है। इसकी एज लगभग 4700 ईयर्स पहले का है ये। और ये राइट साइड में ये एक सिल्वर कॉइन है, ठीक है, जिसकी एज 2500 ईयर्स की है। ये जो कॉइन्स, ये जो चीजें दिखाई गई हैं, दोनों एक ही पिक्चर है, ये फ्रंट और ये बैक। ओके, ये एक कॉइन की पिक्चर है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। वो ये भी ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश के जो बोन्स हैं उनसे फाइंड आउट करते हैं कि पास्ट के पीपल क्या क्या खाते थे। अगर हमें प्लांट्स को सरवाइव कराना है तो हमें बहुत मुश्किल है, एक प्लांट को आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकते हैं, बट उनको सरवाइव कराने के लिए जो उनके सीड्स हैं उसको आपको सेव करके रखना होगा, सेव रखना होगा, तभी हम उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे, उसकी लाइफ को ज्यादा कर पाएंगे। या फिर जो वुड है उसके पीसेस अगर ब्रंट हो गए हैं तो वो एक कॉल की फॉर्म में आ जाते हैं, चार्ड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, उनका कोयला बन जाता है, तो उनकी लाइफ को देख के भी हम बता सकते हैं कि ये कितना पुराना है। Now the question arises, do you think cloth is found frequently by the archaeologists? क्या राजा रानी के कपड़े भी मिलते हैं? या फिर जो अर्लीस्ट पीपल हैं उनके क्लोथ्स, उनका क्लॉथिंग सिस्टम क्या था, वो क्या पहनते थे, ऐसी कोई जानकारी भी उनके पास है? तो हाँ, ये जानकारी भी उनके पास में है। हिस्टोरियंस, अभी हमने आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ा। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुरानी चीजें होती हैं उनकी स्टडी करके हमें बताते हैं कि इसकी एज कितनी है, ये कौन से काल का है, तो उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। बट हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस आर हु स्टडी द पास्ट, जो स्टडी करते हैं पास्ट को। और उनके सोर्सेस क्या होते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के?
manuscript, inscriptions or archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure so as we reconstruct it bit by bit. Like अगर किसी चीज के हमें सोर्सेज मिल जाते हैं तो पास्ट के बारे में उनके पास्ट के बारे में जानना हमें एडवेंचर सा लगता है, और उनके हम टुकड़े अगर कलेक्ट करें तो हम उसी से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स. तो हमें हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कैसे लगते हैं, जैसे कि वो डिटेक्टिव हो और वो क्लूज सर्च करते हैं, उनके सोर्सेस क्लूज होते हैं कि पास्ट के बारे में वो फाइंड आउट कर सकें. वन पास्ट और मैनी पास्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हम सिर्फ एक का पास्ट पढ़ते हैं या बहुत सारों का पास्ट पढ़ते हैं. तो हैव यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक, द टाइटल ऑफ दिस बुक इज आवर पास्ट. We use the word past means in plural to draw attention to fact the past was different from different groups of people. कि ये जो past है वो different time का है, different people का है, different groups का है. For example, हम compare कर सकते हैं life of herders और farmers की, kings और queens की. So much difference lives of merchant and life of craft person and so on. Also as it true even today, ये आज भी सच है कि डिफरेंट तो है, डिफरेंस है. जो कल था हमारे पास्ट में वो डिफरेंट था, जो आज प्रेजेंट में है वो डिफरेंट है, एंड मेक श्योर जो फ्यूचर में होगा वो भी डिफरेंट होगा, वो आज जैसा नहीं होगा सब कुछ. यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. इट मीन्स अलग एरिया में आप जाते हो, अलग स्टेट में जाते हो, वहां जितने भी अलग अलग स्टेट में जाओगे आपको अलग कस्टम, अलग उनकी भाषा मिलती है, बोली मिलती है अलग, है ना. फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान. अंडमान में कुछ लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं, ताकि वो अपने फूड के लिए फिशिंग कर सके, हंटिंग कर सके और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको कलेक्ट कर सके. बट अगर हम इनका कंपेयर करें तो कुछ लोग सिटीज में रहते हैं और वो डिपेंड रहते हैं कि उनके फूड की सप्लाई होगी. तो डिफरेंसेस तो चलते रहेंगे, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी डिफरेंसेस रहेंगे. बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जो किंग्स हैं उनकी लाइफ, उनके बैटल्स जो उन्होंने जीते हैं उनके रिकॉर्ड हमें मिलते हैं, ठीक है, उनके विक्ट्रीज जितनी भी हैं उनके रिकॉर्ड हमें मिलते हैं. बट जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो हंटर्स हैं, फिशिंग फॉक है, गैदरर्स है, फार्मर है, हर्डर है, क्या उनकी कभी रिकॉर्ड मिले हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया, हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है. बट जो किंग्स हैं हमें उनके बारे में पता है, उन्होंने किस टाइम पे कौन से बैटल को जीता है ना. तो ये क्या है, डिफरेंस बताया गया है. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. Archaeology ने हमें काफी कुछ, they gave us most knowledge, but some things are still unknown. We don't know anything about that. What do dates mean? Now the question arises, dates का क्या मतलब है, dates क्या है. So if somebody asks, अगर कोई आपसे डेट पूछता है तो you will probably mention the day, month and year, 2000 and 2020, something else. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. The founder of Christianity, Jesus Christ का जब से जन्म हुआ है तब से हम ये डेट को काउंट कर रहे हैं, ठीक है. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. 2000 means कि 2000 ईयर बाद की बात हो रही है, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके 2000 साल बाद की बात हो रही है. बट अगर हम उनसे पहले की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम यूज करते हैं BC. BC means before Christ, उनके जन्म से पहले. In this book we will refer to dates going back from the present. इसमें जो यूज किया गया है वो कहां से यूज किया गया है, 2000 एज आर स्टार्टिंग पॉइंट. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2000 ईयर. ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब द चैनल
and don't forget to click on bell icon. Thank you.